सो आज हम लोग कर रहे हैं सीटेट की मैथ्स मैराथन। सो फर्स्ट क्वेश्चन है जो नंबर ऑफ द एजेस ऑफ द पॉलीहाइड्रन है विच हैज 7 फेसेस एंड 10 वर्टिसेस। सो दैट वुड बी f plus v minus e equals to 2, correct? So the faces would be 7, 10 vertices, so you have to calculate the edges. So that would be 2 minus 17, so that would be equals to 15, correct? Minus and minus would be cut down. So 15 is the answer. Next question is like in the triangle ABC, the side AB is produced to E and the side CA is produced to D. So if BAD is this and EBC is this, so which of the following would be true? So angle BAC plus angle BAD would be equals to 180 degree. Yes, because it's a like linear pair. So BAC plus 125 would be equals to 180 degree. Yes, so BAC would be equals to 180 minus 125 is 55. Now you have to calculate ABC. So ABC plus EBC would be equals to 180, correct? So ABC plus 100 would be equals to, this is 100, yes. So ABC is how much? ABC would be 80 degree. So हम इसी तरीके से BAC प्लस जो एंगल सम प्रॉपर्टी है इंटीरियर एंगल का जो वो होता है उसके अकॉर्डिंगली हम लोग कैलकुलेट करेंगे ट्राइंगल का 180 डिग्री। तो ये 55 है, ये 80 है, तो हमें AC भी निकालना है। सो AC भी वुड बी इक्वल्स टू 45 डिग्री। यस, सो आपका इसका आंसर आ जाएगा जो डिफरेंस है BAC और ACB के अंदर वो 20 डिग्री का आएगा, करेक्ट? ओके, मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कह रहा है? जो डिफरेंस है दो सप्लीमेंट्री एंगल में 20 का है, अगर स्मॉलर एंगल P है तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? सी x plus y equals to 180 degree, yes, and x minus y would be equals to 20. So x plus y plus x minus y would be equals to 180 plus 20, that is 200, correct? So 2x would be equals to 200, x equals to 100, correct? So 100 plus y equals to 180, yes, so y would be equals to 80. Yes, so p कितना आ जाएगा? p would be 80, 3 multiply 80 minus 50, so that would be 240 minus 50, so that would be equal to 190 is the answer. Next question is the area of the curved surface is this. So curved surface of the right circular cylinder is this and the circumference is this. You have to find out the volume. See, 2 pi r would be equals to 110, so radius would be equals to how much? Because pi is 22/7, so radius is 17.5 centimeter. So curved surface area would be equals to 2 pi RH. Yes, so 4400 would be equals to 110 multiply h, so h would be equals to 40 centimeter. Yes, and volume would be equals to pi r square h. Clear? So the answer would be equals to 22/7 multiply 17.5 multiply 17.5 multiply 40. Yes, so answer would be equals to 38500, and when you will convert it 38500 centimeter cube, so you will convert it, so that would be equals to, अगर आप मीटर के अंदर करेंगे मीटर क्यूब में, so आपको किससे डिवाइड करना पड़ेगा? 100000। yes, so this would be the answer. Next question, in the triangle ABC and DEF, this would be the B is 90, BC is 8 and A is 40 and D is this, F is this and E is this. So which of the following statement is true? See, angle C would be equals to 180 degree minus 90 plus 40. Yes, so that would be 50 degree. Angle D कितना आ जाएगा? 180 minus 90 plus 40, so that would be also 50 degree. यस, सो आपके पास क्या आ जाएगा? B इक्वल्स टू E, राइट एंगल है, दैट इज़ 90 डिग्री। एंगल A जो है वो एंगल F के बराबर है, सो दैट इज़ 40 डिग्री। एंगल C जो है वो एंगल D के बराबर है, सो दैट इज़ 50 डिग्री। यस, सो ट्राइंगल ABC किसके कॉन्करेंट है? ट्राइंगल FED। यस, बाय व्हाट? बाय वुड बी इक्वल्स टू, यू हैव टू कन्वर्ट, यस, बाय RHS। यस, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल के थ्रू होगा। ओके, राइट एंगल ट्राइंगल RHS के थ्रू है। यस, क्योंकि RHS के थ्रू किस लिए है? क्योंकि 90 डिग्री है। यस, राइट एंगल के थ्रू है इसलिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द फॉलोइंग टेबल दिस शोज द नंबर ऑफ द डिफरेंट फ्रूट्स। यस, सो इन द अबव डाटा व्हाट इज द एंगल ऑफ द सेक्टर रिप्रेजेंटिंग द एप्पल्स? सो फर्स्टली यू विल ऐड, टोटल कर लेंगे इसको, 44 प्लस 56 प्लस 42 प्लस 30 प्लस 38. यस, सो दैट वुड बी इक्वल्स टू 210.
So angle would be equals to what? The number of apples, yes, 56 divided by total multiply 360. So the answer would be equals to, आंसर आपका कितना आ जाएगा जब हम इसे कट करेंगे, या 7 and this would be 12, 8, so that will be 96 degree. yes. नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जो ट्राइंगल है PQR, उसके अंदर जो P है वो 55 है और QR जो है वो 18 है, 55 डिग्री है, ठीक है। तो कौन से केस में PQR जो है वो ऑब्ट्यूज स्केलन ट्राइंगल होगा? सो फॉर ऑब्ट्यूज ट्राइंगल के लिए हमारे को क्या क्या, ऑब्ट्यूज स्केलन ट्राइंगल के एक एंगल जो है वो 90 डिग्री से बड़ा होना चाहिए और जो तीनों साइड्स हैं वो उनकी अलग अलग लेंथ होनी चाहिए। तो इसके अंदर हमारे पास बैठता है ये वाला ऑप्शन, R अगर 15 होगा और PR जो होगा वो बड़ी होगी किससे, 18 सेंटीमीटर से ज़्यादा, क्योंकि QR क्या 18 है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, PQRS एक पैरेललोग्राम है जिसके डायगोनल ये इंटरसेक्ट करते हैं O पे, सच दैट OP इतना है, OQ इतना है, OR इतना है, OS इतना है, यस। तो हमें क्या इसका आंसर क्या होगा? सी x + 7 किसके बराबर हो गया, 20 के, करेक्ट। सो क्योंकि OP जो है वो OR के बराबर है तो x कितना आ जाएगा, 13, यस। x + y कितना है आपके पास, दैट वुड बी इक्वल्स टू x + y है 17 के बराबर, ओके। सो 13 + y इक्वल्स टू 17, तो y कितना आ जाएगा, 4, यस। सो 2x - y वुड बी इक्वल्स टू 2 × 13 - 4, सो 2x - y इक्वल्स टू 22, yes, okay. So the answer would be equals to, it's C part, 26 is the answer, yes, because अगर हम y को इसमें हम पुट करते हैं 22 + 4, that would be equals to 2x equals to 26, yes. Next question कह रहा है, in the pie chart the marks obtained by the student in the mathematics and the science and social science are all these दे रखे हैं। अगर टोटल मार्क्स जो है 540 हैं तो क्या डिफरेंस हो जाएगा मार्क्स का मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश में? सो आपके पास क्या हो जाएगा, 90 माइनस डिफरेंस कितना है, 90 - 50, यस। सो दैट इज़ 40 डिग्री, करेक्ट। तो डिफरेंस इन एंगल कितना हो जाएगा, 40/360 × 540, तो आपके पास आंसर आ जाएगा, दैट वुड बी 60, यस, ओके। और अब हमारे पास इससे क्या पूछ रहा है, 90/360 × 540, सो दैट वुड बी इक्वल टू 135, क्लियर। एंड 50/360 × 540, यस, सो दैट वुड बी इक्वल टू 75। तो जब हम इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 135 - 75, सो इट वुड बी 60A, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नंबर ऑफ द फेसेस, एजेस एंड वर्टिसेस जो है वो ये ले रखी है, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2f + 3e - 4x, कितनी वैल्यू हो जाएगी? अगर फेस है 7 और अगर एच जो है हमारे पास 15 है -4x, यस। सो दैट वुड बी इक्वल टू 14 + 45 - 4x। एंड फॉर द फर्स्ट वन हम लोग इसे इस तरीके से निकालेंगे, f + v - e = 2, दिस इज़ द फॉर्मूला। तो f हमारे पास 7 है एंड v इज़ x एंड e हमारे पास 15 है, तो हमारे पास x कितना आ जाएगा, दैट वुड बी 10, ठीक है। तो हम क्या कर देंगे, 14 + 45 - 4 × 10, सो दैट वुड बी इक्वल टू 19। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, दो पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट करते हैं ट्रांसवर्सल और दो इंटीरियर एंगल के थ्रू, यस। 2x + 15 एंड 3x - 20, तो कितनी वैल्यू हो जाएगी इसकी? सी 2x + 15 + 3x - 20 वुड बी इक्वल्स टू 180। तो जब हम इसको वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे, x आ जाएगा 37, ठीक है। और हमें वैल्यू कितनी निकालनी है, 4 × 37 + 6, सो आंसर आ जाएगा 154, यस। 154 डिग्री इज़ द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, m एक पॉइंट है साइड AB पे, सच दैट ये तीनों के तीनों इक्वल है। अगर a और b जो है वो x और 70 है तो इसकी वैल्यू निकाल। सी एंगल A + एंगल B + एंगल ACB जो है वो किसके बराबर है, 180, यस। सो x + 70 + 90 वुड बी इक्वल्स टू 180, करेक्ट। तो हमारे पास x कितना आ जाएगा, 20। सो 3 × 20 + 25, हम जब इसे कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 85, यस, 85 इज़ द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, अगर D एक पॉइंट है साइड AB पे, सच दैट CD जो है एक बाइसेक्टर है इसका, और A इतना है और B इतना है। सी एंगल A + एंगल B + एंगल ACB जो होगा वो सम ऑफ द ऑल एंगल्स क्या हो जाएगा, 180 डिग्री, यस, ट्राइंगल के अंदर।
ABC ट्राइंगल के अंदर, करेक्ट। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 50 + 70 + ACB किसके बराबर है 180, करेक्ट। सो ACB किसके बराबर आ जाएगा, दैट वुड बी 60, ठीक है। तो ACD किसके बराबर आ जाएगा, दैट वुड बी एंगल BCD, ठीक है, 60/2, सो दैट वुड बी इक्वल टू 30, ठीक है। अब एंगल A प्लस एंगल ACD प्लस एंगल ADC इक्वल्स टू 180, यस। तो 50 + 30 + ADC इक्वल्स टू 180, तो ADC किसके बराबर आ जाएगा 100। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक पेंटागन में ABCDE के अंदर ABCD दे रखा है और E भी दे रखा है, यू हैव टू कैलकुलेट दिस वैल्यू। सी सम वुड बी इक्वल्स टू n - 2 × 180 डिग्री, करेक्ट। सो 5 - 2 × 180 डिग्री, सो दैट वुड बी इक्वल्स टू 540, करेक्ट। तो हम सारे एंगल्स का सम कितना हो जाएगा 540 के बराबर आ जाएगा। 2x + 1 2x + 9 2x + 1 + 2x - 1 + 2x + 5 + 2x - 4, so that would be equals to 540, yes. So 10x would be equals to 540 और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, that would be equals to 54। तो वैल्यू निकाल लेंगे 2 × 54 + 10, so that would be equals to 118। नेक्स्ट कह रहा है जो दो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं फॉर्म बाय द इंटरसेक्शन ऑफ द टू पैरेलल लाइन बाय द ट्रांसवर्सल आर दिस, यू हैव टू कैलकुलेट दिस वैल्यू। सी अब ये दोनों बराबर हो जाएंगे क्योंकि पैरेलल लाइन के इंटरसेक्शन से बन रहे हैं, दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है तो बराबर हो जाएंगे, यस। तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20, तो 4 × 20 + 30 की तरह आ जाएगा 80 + दिस 110। नेक्स्ट क्या आ रहा है, अगर वेट है 18 शीट ऑफ द पेपर की 50 ग्राम्स, यस। तो 1 शीट ऑफ द पेपर की कितनी आ जाएगी, 1 शीट की निकाल लेंगे हम, या सो 1 kg भी कितने के बराबर होता है 1000 ग्राम्स के बराबर होता है। अब हमारे को कितने की निकालनी है, सबसे पहले हम 1 शीट की निकालेंगे, सो दैट वुड बी 50/1000। हमारे को अगर kg में कन्वर्ट करना होगा सो यू कैन टेक इट, अदरवाइज यू विल टेक ओनली 50, ओके, 50 / 18, यस। तो सबसे पहले हम देखते हैं 1 kg किसके बराबर है 1000 ग्राम के, सो टारगेट है 3/4 kg, so that would be 15/4 kg, yes। 15/4 × 1000, करेक्ट। सो आंसर आ जाएगा 3750 ग्राम्स। अब टोटल शीट्स कितनी आ जाएंगी 3750 × 18/50, यस। तो शीट्स आपके पास आ जाएंगी जब हम इसको पूरा करेंगे क्लियरली, सो दैट वुड बी 1386। 1386 इज द आंसर। नेक्स्ट कह रहा है अगर ये 4x² + 12xy - 8x + 9y² - 12y अगर इसके बराबर है तो हमें वैल्यू निकालनी है। सी इसके बराबर है तो हमारे पास क्या आ जाएगा ax + by and ax + by - 4 would be equals to what, ax + by whole square - 4ax + by, करेक्ट। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, दैट वुड बी इक्वल्स टू ax + by whole square equals to a² x² + 2abxy + b² y², so -4ax + by would be equals to -4ax - 4by, यस। सो जब हम इसे कंपेयर करेंगे सारे कोफिशिएंट्स को तो हमारे पास a² की वैल्यू आ जाएगी 4, सो दैट वुड बी a वुड बी आइदर 2 और -2। b² की 9 आ जाएगी, सो b वुड बी आइदर 3 और -3 एंड 2ab की वैल्यू आ जाएगी 12, सो ab की वैल्यू आ जाएगी 6, यस। तो हमारे पास a 2 है और b जो है वो 3 है और हमारे को क्या कैलकुलेट करना है, a² + b² कैलकुलेट करना है, सो दैट वुड बी 4 + 9 दैट इज 13। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ द प्रोडक्ट ऑफ दिस एंड दिस सम ऑफ द कोफिशिएंट्स आर, या सो 5x 2x² - 3x + 5 जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे +2 2x² - 3x + 5, करेक्ट। तो जब हम इसको पूरा निकालेंगे सो दैट वुड बी 10x³ - 15x² + 25x, या +4x² - 6x + 10, करेक्ट। तो जब हम इसे पूरा सॉल्व कर लेंगे 10x³ - 11x² + 19x + 10, या सो दैट वुड बी कोफिशिएंट ऑफ x² कितना आ जाएगा -11 और x की वैल्यू आ जाएगी 19, करेक्ट। सो -11 + 19 किसके बराबर है 8 के।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारे पास अगर लेट x इतना दे रखा है व्हेन x इज एक्सप्रेस इन द स्टैंडर्ड फॉर्म देन द वैल्यू ऑफ द m। सी x की वैल्यू है 597 मल्टीप्लाई 10⁻22 प्लस 73.5 मल्टीप्लाई 10⁻21। यस, तो हमारे पास इसके किसके बराबर दे रखी है, ये हमारे को निकालना है 5970 प्लस 73.5 मल्टीप्लाई 10⁻21, so that would be 6043.5 मल्टीप्लाई 10⁻21। सो जब हम इसको 3 प्लेसेस टू द लेफ्ट लेकर आएंगे 6.0435 मल्टीप्लाई 10⁻, दैट वुड बी 24, सो 24 इज़ द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अगर 2m माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2m जो है वो 2 के बराबर है, सो यू हैव टू कैलकुलेट सी m माइनस दिस यू कैन राइट इट डाउन 2m माइनस 1 बाई 2m इक्वल्स टू 2। यस, सो m माइनस 1 बाई 4m इक्वल्स टू 1। So when you will do whole square on the both sides, so that would be m square minus 2m dot 1 by 4m plus 1 by 16m square equals to m. So when you will solve it, so answer would be m square plus 1 by 16m square equals to 3 by 2 is the answer. Next question is like one of the factor of this x raised to the power 4 plus 4. See, this would be x square raised to the power square plus 2 whole square. So x square raised to the power 2 plus 4x square plus 2 whole square minus 4x square. So this would be x square by x square plus 2 raised to the power 2 minus 4x square. So the answer would be equals to x square minus 2x plus 2 and x square plus 2x plus 2. Yes, correct. So the answer would be the B part. Next question is like Ravi purchased 2 article 1500 each and he sold at a gaining of this 6% and losing this. See, so article CP would be 1500. Yes, so total CP would be equals to what? So that would be 3000, correct. So profit 6% of 1500, so that would be equals to 90. Yes, and SP would be equals to 1590. Yes, नाउ अगर लॉस होता है 4% का 1500 पे तो हमारे पास आ जाएगा आंसर दैट वुड बी 60। तो SP2 कितना आ जाएगा 1500 माइनस 60, सो दैट वुड बी 1440 और दोनों को ऐड ऑन कर देंगे 3030। सो 3030 SP है और अगर हम इसे माइनस करेंगे 3000 से, सो दैट वुड बी 30। यस, सो टोटल गेन 30 डिवाइडेड बाय 3000 मल्टीप्लाई 100। यस, सो दैट वुड बी 1% का गेन होगा इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ 3x या, सो यू हैव टू कैलकुलेट दिस। तो जब हम इसे पूरा सॉल्व करेंगे सो 3 यू कैन स्टार्ट विद दिस डायरेक्टली 15x माइनस 21 माइनस 32x प्लस 52 इक्वल्स टू 18x माइनस 22 माइनस 17. So this would be minus 17x plus 31 equals to 18x minus 39. So 35x equals to 70. Yes, and x would be equals to 2. Yes, तो हमारे को निकालना है ये 7 multiplied 2 minus 5 divided by 11 multiplied 2 minus 9. Yes, so 14 minus 5 divided by 22 minus 9. So that would be 9 divided by 13. Correct. नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अगर दिस वन वैल्यू इज़ गिवन, सो यू हैव टू कैलकुलेट वैल्यू ऑफ सी 13 स्क्वायर इज़ 169 एंड 5 स्क्वायर इज़ 25, so that would be 144 raised to the power 3 according to this, okay, divided by 2, so that would be 12 raised to the power 3 equals to 6 raised to the power 3 multiply a, correct. So 12 by 6 raised to the power 3, so that would be 2 raised to the power 3, correct. So a is the answer. Next question is the measure of an angle for which the measure of the supplement is 4 times the measure of the complement. See, 180 minus x would be equals to 4 multiply 90 minus x, so you have to solve this. 4x minus x equals to 360 minus 180, so that would be equals to x equals to 60. Yes, and the complement would be equals to, you have to calculate a complement, so that is 90 minus 60, that would be 30 degree. If you like this video, then please press the button of like, and you have to share it with your friends, and you have to subscribe my channel for getting more and more videos and marathons. Okay, we will meet in the next marathon. Bye.